Good morning, learners. I'll start with the statement type of sums in the same chapter. That is, yes, chapter number 9 of statistics. Now, over here, the question is given to us. A person deposits rupees 10,000 in a bank in the year 2009, rupees 20,000 in the year 2010, rupees 40,000 in the year 2011. यानी कि पहले साल में उसने 10,000 डिपॉजिट किए, पहला साल इस 2009. फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में उसने डिपॉजिट किए 20,000 रुपीज़ 2010 में, और उसके बाद के ईयर में यानी कि 2011 में 40,000 डिपॉजिट किए. द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन एनी गिवन ईयर इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. यस, हम कंपेयर करें तो जो इंसान है वो डिपॉजिट जो अमाउंट कर रहा है दैट इज द डबल ऑफ द प्रीवियस ईयर. यानी कि 2010 के लिए प्रीवियस ईयर हुआ 2009, तो 2009 में उसने 10,000 किए थे, तो डबल इन नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 2010 उसने 20,000 डिपॉजिट किए थे. What would be the amount of deposit in the year 2014? तो इस तरह से 2014 में उसके अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या होगा. So as it is statement type of sum, so the statements are written. A person deposits rupees 10,000 in first year, that is in 2009. So our A is 10,000. Yes, A को हम first term T1 भी बोलते हैं, and over here question से ही मालूम चल जाता है our A is 10,000. Now next line, every year the amount of deposits is twice the previous year's amount. So R is 2. ये सार कैसे कैलकुलेट करना है आप सबको मालूम ही है. Over here 20,000 by 10,000 we will get 2. R is 2. We are asked to calculate the amount deposited in the year 2014, that is 6th year में उसका कितना डिपॉजिट रहेगा. So TN formula you all know, TN equals to AR. n-1 जो है वो ऊपर होगा. So we put in the details in the formula in order to get our answer. It is very simple. We start, as I said, T6 we are supposed to calculate. So T6 equals to A की जगह पे हम लिखेंगे 10,000, R की जगह पे I'll write 2, n-1 means 6 minus 1. 10,000 2, 6 minus 1 we will get 5. So 10,000 into 2 को हम 5 times multiply करेंगे, so we will get 32, and our answer is yes, obviously 10,000 into 32, our answer is 3,20,000 rupees. अब क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ सम है तो हमें यस लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी होगा. Thus the amount deposited in the year 2014, thus yeah, so the amount deposited in the year 2014 is rupees 3,20,000. I hope it is clear to you people. Now one thing, 6 कैसे आया, n equals to 6. सिंपल है, पहला साल है हमारा 2009. So 2009 से we start calculating. So it is 2009, 2010, 2011. Then 2012, 2013, 2014. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इस तरह से 6, n equals to 6. Let me start with the next question, students. It says that a water tank of a capacity of 50,000 liters is fully filled with water. Every week the water level reduces to half of the previous level due to leakage. Now over here water tank की capacity, full capacity is 50,000, means our A is 50,000. Simple. फिर उसके बाद हमको बोला गया है कि एवरी वीक लीकेज की वजह से वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 25,000. सो
50,000 हमारा फर्स्ट टर्म है, हमारा सेकेंड टर्म है 25,000. सो ओवर हियर इन ऑर्डर टू गेट आर, yes, 25,000 divided by 50,000, we will get 0.5, that is 1/2 we can write. यहाँ देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एवरी वीक द वाटर लेवल रिड्यूसेस टू हाफ. सो एज इट रिड्यूसेस टू हाफ मीन्स ऑटोमेटिकली आर 1/2 ऐसे भी आ जाता है. नाउ नेक्स्ट हमको बोला गया है कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर 5 वीक्स. आफ्टर 5 वीक्स के लिए हम लोगों को n6 लेना पड़ेगा, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला it is n minus 1 in the power, so it is 6 minus 1, that is 5 तब हम लोगों को मिलेगा. So yes, you all know A है 50,000, R 1/2, n6 कैसे लिया वो भी मैंने समझा दिया. फॉर्मूला you all know, Tn equals to AR, पावर में it is n minus 1. So yes, we'll write the details in the formula. 50,000 A की जगह पे, R की जगह पे it is 1/2, then it is 6 minus 1. So 50,000 1/2 with the power of 5. Yes, if you multiply 2 5 times जैसे पिछले सम में किया था, you will get same, that is 32, but over here it is 1/32. If you calculate it, if we calculate it, you will get 1562.5. 1562.5. अब जैसे पिछले सब में स्टेटमेंट्स लिखी थी सारी, उस तरह से आपको भी सब में स्टेटमेंट्स लिखना कंपल्सरी रहेगा. आई होप आई एम क्लियर टू यू पीपल. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Population of a city is 20 lakhs, so A is 20 lakhs. Simple. If the population increases at the rate of 3% every year, find the population of the city after 6 years. So, very simple and easy. A जैसे मैंने बताया 20 lakhs है. R कैसे calculate करना है? It says that the population increases at the rate of 3% every year. Percent है means obvious है 100 आएगा. So calculation, as the population increases at the rate of 3%, we will calculate it 100 plus 3 divided by 100. Yes, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगे. 3% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे. इट इज 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100, यू विल गेट 1.03. ये हमारा आर का कैलकुलेशन था. आर का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताया गया है. देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 6 years. तो यस, पावर में सेम जैसे पहले वाले सम में था उसी तरह से हम लोग 7 minus 1 लेंगे, तभी हम आफ्टर 6 years फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 6 years का कैलकुलेशन हम तब कर सकेंगे. नाउ स्टेटमेंट्स, यस यू आर सपोज्ड टू राइट बाय योरसेल्फ एज इन द फर्स्ट सम. आई हैव डन. फॉर्मूला, वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. सो वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. T7 equals to, it is yes 20 lakhs. फिर उसके बाद it will be R which is 1.03 with the power of 7 minus 1. So yes, 20 lakhs. Then 1.03 power 7 minus 1, 6 आ जाएगा. Now directly you will multiply and you will get 23,888,104.5930. स्टेटमेंट आपको आगे लिखनी है, यू ऑल नो. एंड यस, बिफोर आई से दैट आई एम डन विद द सी क्लास, एग्जाम्पल नंबर 17 इज योर होमवर्क. अब यहाँ पे हम लोगों ने किया था पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे आपको बोला गया है डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन मीन्स ऑब्वियसली कम हो रहा है, वैल्यू जो है मशीन का कम हो रहा है. सो यहाँ पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसमें आप माइनस करेंगे. यहाँ पे इंक्रीज था ये वाले में तो हमने प्लस किया, उसमें डेप्रीसिएशन है तो वहाँ पे आप माइनस करेंगे in order to calculate R, that is common ratio or common difference. So I'm done with the E class. Thank you.